बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start workbook of science grade 5. All of you open your workbook page number 1. Unit number 1, the brain and nerves. So students, in our previous lecture we have learnt about brain, its different parts and nerves. Quran and science. Sajda has positive effect on brain, lungs, muscles, various joints and backbone. This is the only position in which brain become lower than the heart, resulting in gushing of blood towards the brain, providing good oxygen supply and nutrients to the brain. Also note that in all other position, even when lying on bed, brain is above the heart, which has to work against gravity to send blood to the brain. Remember that blockage of blood flow to the brain result in tiredness, lack of clarity and stroke. So students, according to Quran and science, जो सजदा है उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं ब्रेन के ऊपर, लंग्स के ऊपर, मसल्स, जॉइंट्स और बैकबोन के ऊपर. इसके अलावा ये वाइड पोजीशन है जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो हार्ट से लोअर पोजीशन पर होगा, और इसके अलावा वो हार्ट जो होगा वो ब्रेन को गुड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगा. ऑल्सो नोट दैट इन ऑल अदर पोजीशन. ओके स्टूडेंट्स, बाकी जितनी भी पोजीशंस होंगी, यहाँ तक कि अगर हम बेड के ऊपर लेटे भी हुए हैं तब भी जो हमारा ब्रेन है वो हार्ट की निस्बत अबव होगा. विच हैज़ टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, जो क्या करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेगा ताकि ब्लड जो है वो ब्रेन को सेंड हो सके. रिमेंबर दैट ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन. अगर ब्लड के फ्लो को ब्लॉक कर दिया जाए तो टायर्डनेस, लेक ऑफ क्लैरिटी एंड स्ट्रोक, तो ये तमाम चीज़ें होंगी. कॉन्सेप्ट चेक. यूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. द नर्व that transmit signals from the brain to the muscles and glands are called dash nerve. So students, we are talking about brain to the muscles. So that nerve that transmits signal from brain to the muscles are motor nerves. Write motor in this blank. The nerve that transmits signals from the sense organ to the brain are called dash nerves. In this blank we are talking about the sense organ. So that nerves that transmit signal from the sense organ are called sensory nerve. Write sensory in this blank. Fill in the blanks to complete these sentences. Here are few words. We have to write these words in their proper blank. First one is heartbeat, listening, thinking, balance, movement, breathing, digesting and reading. First one is the cerebrum control dash dash and dash. So students, cerebrum is the largest part of the brain and it control voluntary action. Voluntary action mean those action where our thinking is involved. So write listening, thinking and reading in this blank. Second, the cerebellum control balance एंड मूवमेंट. अब सेरिबेलम जो है वो हमारे मसल्स और जॉइंट्स की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है, इसके अलावा बॉडी के बैलेंस को भी कंट्रोल करता है. सो हेयर आर द वर्ड बैलेंस एंड मूवमेंट. राइट बैलेंस एंड मूवमेंट इन दिस ब्लैंक. द मेडुला कंट्रोल heartbeat, digesting and breathing. So students, medulla control all the involuntary action. Involuntary mean those where our thinking is not involved. So during heartbeat, digesting and breathing, our thinking is not involved. So these all are the involuntary action. Page number 2. Think and write which area of the brain will be the most active when you perform the following task and action. First action is walking. Cerebellum, coordinate, movement, balance. So cerebellum is involved because we are talking about
walking, so in walking our muscles and joints are used, so cerebellum actually control the balance and movement of the body. Second is cerebrum, वॉलेंट्री मूवमेंट। सेरिब्रम क्यों इन्वॉल्व होता है? इसलिए होता है कि वॉकिंग जो है वो एक वॉलेंट्री एक्शन है, हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं। रिमेंबरिंग टू बाय योर फ्रेंड अ प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे, सेरिब्रम थिंकिंग। अब क्या हमने अपने फ्रेंड के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदना है, सो हमें क्या होगा, ये फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा? सेरिब्रम कंट्रोल करेगा, बिकॉज थिंकिंग इज इन्वॉल्व, और ये क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है। कॉपिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ बुक, सेरिबेलम, बिकॉज हम चूँकि पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं बुक से देखकर, तो सेरिबेलम इसलिए इन्वॉल्व होगा क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं हैंड के वो मूव कर रहे हैं। सेरिब्रम इसलिए होगा क्योंकि हम उस पिक्चर को बुक से देखकर बना रहे हैं, सोच कर बना रहे हैं, तो सेरिब्रम जो है वो उसमें क्या आ रहा है? सीइंग, थिंकिंग। Understanding different words. So students, cerebrum is involved in this action because first we read the different words, then think and then understand. So cerebrum control these action. Doing well in your test, cerebrum, because cerebrum enable us to remember things. Controlling your tears when you are sad, tears mean आंसू, so जब आप सैड होते हैं तो आपके आंसू को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल और टीयर्स, बिकॉज सेरिब्रम कंट्रोल और फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, etc. फीलिंग बोर एंड फेड अप, जब आप बोर होते हैं और बेजार हो जाते हैं तो कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है, क्योंकि ये रिलेटेड है। बोर एंड फेड अप मीन फीलिंग्स, हम फील करते हैं कि हम बोर हो गए, हम थक गए हैं, तो ये फीलिंग्स जो हैं ये सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। Page 3, concentrating on a particular subject. Concentrating on a particular subject. So, which part of a brain? Cerebrum, because we are talking about the particular subject. हमने concentrate करना है subject के ऊपर. So, it's mean कि हमें हर चीज़ को remember करना है, हमें याद रखना है और इसके अलावा understand करना है. तो cerebrum control this action. फीलिंग पेन इन योर एल्बो, पेन फील करना है हमने, किसको? पेन को फील करना है, सो सेरिब्रम इन्वॉल्व होता है क्योंकि सेरिब्रम हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। टॉकिंग टू योर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड से बातें करना, इसको कौन कंट्रोल करेगा? सेरिबेलम कंट्रोल करेगा, बिकॉज क्योंकि जब हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो हमारी जो मूवमेंट होगी टंग की मूवमेंट होगी, और मूवमेंट को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। कफिंग मीन खांसना। अब ये जो कफिंग है ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, मीन हम सोच के खांसते नहीं है, ये ऐसा एक्शन है जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इनवॉलेंट्री एक्शन को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? मेडुला और ब्रेन स्टेम। लास्ट वन इज ब्लिंकिंग, तो इस एक्शन को, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, इसको भी मेडुला कंट्रोल करेगा। थिंक ऑफ अदर एक्शन एंड मेक अ लिस्ट। आस्क अ फ्रेंड, क्लास फेलो to tell you which part of the brain are used. At the same time you can work on the list your friend has made. So first action is walking, jumping. cerebellum इसको कंट्रोल करेगा क्योंकि वॉकिंग और जंपिंग में हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है और मूवमेंट को cerebellum कंट्रोल करता है। मिसिंग स्कूल फ्रेंड, सेरिब्रम, चूँकि हम सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व है, हम फील कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, तो ये जो एक्शन है ये सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। पेज नंबर 4, ड्रीमिंग वाइल स्लीपिंग। ड्रीमिंग मीन ख्वाब देखना। जब हम सो रहे थे तो हम ख्वाब देखते हैं, इस एक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला कंट्रोल करेगा, क्योंकि ड्रीमिंग जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शन है और इनवॉलेंट्री एक्शन मेडुला कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग फ्रेश कूल एयर, ब्रीथिंग मीन सांस लेना, तो ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, इसको भी मेडुला कंट्रोल करेगा। डियर स्टूडेंट, हियर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी द ब्रेन हैड। वी विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी व्हेन आवर स्कूल्स आर रीओपन। Page number 5, concept check. Answer these question. Do you know the average human brain weight 1200 to 1400 grams? So students, आपको अब ये पता है कि इंसानी जो दिमाग है उसका वज़न 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। Question number 1,
हाउ डज द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट? टंग डिफरेंट टेस्ट को कैसे डिटेक्ट करती है? डिफरेंट टेस्ट वर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन आवर टंग which are sensitive to chemical in food. They send signal to the brain and we become able to detect different taste. So students, हमारी टंग के ऊपर डिफरेंट टेस्ट वर्ड्स होते हैं और ये टेस्ट वर्ड जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं केमिकल्स इन फूड के लिए. इसके अलावा अब ये क्या करेंगे, ये सेंड करेंगे सिग्नल्स को ब्रेन तक और उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम डिफरेंट फूड को डिटेक्ट कर सकें, डिफरेंट फूड के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकें. What happened to the cell on the surface of the skin? स्किन की सतह पर सेल्स के साथ क्या होता है? The skin has thousands of receptor cells which enable us to feel heat, cold, pain and touch by sending information to the brain. So students, स्किन के ऊपर थाउजेंड ऑफ रिसेप्टर सेल्स होते हैं. अब ये सेल ब्रेन को पैगाम पहुंचाते हैं जिसकी वजह से हम हीट को, कोल्ड को, पेन को और टच को फील कर सकते हैं. पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर यू एबल टू हियर साउंड? सो स्टूडेंट्स, आप कैसे आवाज़ को सुन सकते हैं? साउंड वाइब्रेशन पास ऑन द इनर ईयर. साउंड वाइब्रेशन इनर ईयर्स में पास होंगी. नर्व सेंड मैसेज टू द ब्रेन. अब नर्व्स क्या करेंगी, ब्रेन को मैसेज देंगी एंड वी बिकम एबल टू हियर साउंड, और तब हम आवाज़ को सुनने के काबिल हो सकेंगे. लेबल द डायग्राम. ऑल्सो राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन ब्रीफली. Name of the part. This is the cerebrum. This is the cerebrum. It is the largest part of our brain. Function: control voluntary action like listening, feeling, thinking, etc. It also help to remember things. So students, it is cerebrum. It is the largest part of the brain and it control our voluntary action like listening, feeling, thinking. It also help to remember the thing. So students, हमारा जो ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, यह चीज़ों को याद कर रखने में भी हमारी मदद करता है. सेकंड वन इज cerebellum. This is the cerebellum function. It control the balance and movement of muscles and joint. अब cerebellum का क्या फंक्शन है? cerebellum हमारे मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है. इसके अलावा बॉडी में बैलेंस को भी कंट्रोल करता है. कौन बैलेंस और मूवमेंट को कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है. कौन कौन से फंक्शंस लाइक रन, वॉक, जंप. These are the functions that cerebellum can control. It's a medulla. Name of the part medulla. Function. What is the function of medulla? It control heartbeat, digestion and breathing. Students, medulla control all the involuntary action, mean where our thinking is not involved. So medulla control all these action where our thinking is not involved, like heartbeat, digestion and breathing. Name of the part brainstem. It's a brainstem function. It receive, process and adjust function related to sleep, विजन एंड टेम्परेचर. सो स्टूडेंट ब्रेन स्टेम उन तमाम रिएक्शंस को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और एडजस्ट करता है जो कि नींद से रिलेटेड होते हैं, विजन से रिलेटेड होते हैं और टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं. स्टूडेंट्स, इट्स योर होम टास्क. यू हैव टू प्रिपेयर वर्कबुक पेज नंबर 1 to 6 for your upcoming assessment and also write all these work on your workbook of science. Jazakillah, fi amanillah.